علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارا چوتھا سلسلہ ہے جس میں پیچھے رہ جانے والی 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، اور وہ 3 ٹیمیں اب آخری ان کے پاس موقع ہے آگے بڑھنے کا۔ وہ 3 ٹیموں میں سے 2 ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو جائیں گی اور ایک ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گی۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آج چونکہ جمعرات اجتماع ہوتا ہے تو کچھ تاخیر سے، کچھ نہیں بلکہ زیادہ تاخیر سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو جو وہ چھوٹے بچے جن کے سونے کا ٹائم ہو جائے اور گھر والے کہیں امی ابو کے سو جائیں تو پھر بیٹا آپ سو جائیے گا، انشاءاللہ آپ کل ریپیٹ میں یہ سلسلہ دیکھ لیجئے گا۔ اور الحمدللہ اب تو ہماری آئی ٹی مجلس اور سوشل میڈیا مجلس نے بڑا کمال کا کام یہ کیا ہے کہ روزانہ ذہنی آزمائش کے اختتام پر اس پورے سلسلے کی 5-7 منٹ کی ہائی لائٹس جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پورے سلسلے کی جو سمری ہے، پورے پروگرام کا جو کرنچ ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور اس کے ذریعے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کون سی ٹیم آگے رہی۔ تو بہرحال جو جاگ سکتے ہیں یا دنیا کے دیگر ملکوں میں ہمارے ساتھ رہیے، علم دین سیکھنے کی نیت سے اور ڈھیروں علم دین حاصل کیجیے۔ آج تو ویسے بھی جمعرات ہے، اور جمعرات مبارک رات ہے، درود پاک پڑھنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، تو انشاءاللہ علم دین بھی سیکھتے رہیں گے، نعت خوانی بھی ہوگی اور بہت کچھ ہوگا۔ 3 ٹیمیں ہیں، مقابلہ بھی بڑا دلچسپ ہوگا۔ آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں، مگر دنیا میں آپ جہاں کہیں ہیں ہمیں کالز کر سکتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ گھر بیٹھے جو ناظرین ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے ذریعے آپ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے، اور گھر بیٹھے انشاءاللہ انعامات بھی حاصل کر پائیں گے۔ آپ سے ایک SMS کے ذریعے بھی جواب منگوایا جاتا ہے تھوڑی دیر میں، اس کی بھی قرآن دازی ہوگی۔ تو بہت کچھ ہونا ہے سلسلے میں، آخر تک شامل رہیے۔ آئیے تینوں ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تینوں ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلی دائیں طرف میرے شہداد پور ہے، لیا اور مظفر گڑھ، جناب سندھ بھی ہے، پنجاب بھی ہے، جنوبی پنجاب بھی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ یہ تینوں ٹیمیں یہاں تک کیسے پہنچی ہیں غالباً اس کا بھی ہم آپ کو جھلکیاں دکھا پائیں، ورنہ ہم پہلے چلتے ہیں کہ جو آخری پروگرام ہمارا ہوا تھا، جو سلسلہ ہوا تھا کل، اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہ پروگرام کیسا رہا، پہلے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 13 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ ایک ہستی یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کرو، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کس نماز کی اذان وقت کے اندر بھی دینا ناجائز ہے؟ جمعہ کے دن ظہر کی اذان دینا یہ ناجائز ہے، ظہر کے وقت میں اور شہر میں۔ جی جواب درست دے دیا ہے جناب۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ 34 دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میت کے غسل میں صرف 2 فرائض ہیں۔ غلط۔ لفظ قرآن کے 4 حروف ہیں۔ صحیح۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ صحیح۔ پانی پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف نہیں ہیں۔ غلط۔ جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اللہ اللہ، اب باری ہے لیا والوں کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے۔ غلط۔ دعائے نصف شعبان شب معراج میں نہیں پڑھی جاتی۔ غلط۔ مسلم بن حجاج امام بخاری کا نام ہے۔ غلط۔ روح قبض کرنے پر معمور فرشتے کا نام حضرت جبرائیل ہے۔ غلط۔ امامہ شریف کے شبلے کی کم سے کم مقدار 3 انگلیوں کے برابر ہے۔
غلط. سارے ہی غلط کہہ رہے ہو بھائی، لیکن ایک صحیح تھا جس کو غلط کہہ دیا ہے، اور وہ ہے کہ دعائے نصف شعبان واقعی شب معراج نہیں پڑھی جاتی، وہ شب برات میں پڑھی جاتی ہے. جناب ایک اچھے مارجن سے خانقاہ شریف کی ٹیم آگے بڑھ گئی ہے. علم نور ہے، علم نور ہے. جناب یہ اس طرح ٹیمیں آگے بڑھتی چلی گئیں، 3 ٹیمیں پیچھے رہ گئیں، اور ان سب کے پاس آج آخری موقع ہے. امید ہے تیاری زبردست کی ہوگی، مگر دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور کون سی 2 ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو جاتی ہیں. ذہنی آزمائش کے ذہنی آزمائش سیزن 13 میں جن کا سفر آج ختم ہو جائے گا، مگر وہ بھی تحائف لے کے ہم سے جدا ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے سوالات کی طرف چلیں، ناظرین روزانہ آپ سے کوئز ایپلیکیشن کے ذریعے ایک سوال کیا جاتا ہے. ابھی تک اگر آپ نے ذہنی آزمائش کوئز ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. جناب سوال کیا ہے آج کا جو آپ کو آن لائن کوسچنز کے اندر نظر آ رہا ہوگا؟ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام بتائیے. آپ کو 4 آپشن نظر آ رہے ہوں گے: ہدایت بخشش، قبالہ بخشش، ذوق نعت، سامان بخشش. ان 4 میں سے ایک صحیح جواب ہے، تلاش کیجئے، صحیح جواب دیجئے. کیا معلوم آج 5 خوش نصیب جو کمپیوٹر سلیکٹ کرے گا اس میں آپ کا نام بھی شامل ہو. وقت ہے اب جو کل آپ سے سوال کیا گیا تھا اس کا جواب لینے کا. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے مبلغ بہت اچھے پروگرام ہمارے لیے لاتے ہیں. یوسف سلیم بھائی موجود ہیں اور تازہ مکہ مدینے سے بھی آئے ماشاءاللہ، تو وہ قرآن دازی کریں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ کل جو سوال تھا وہ کیا تھا، اس کا جواب کیا ہے، اور صحیح جواب دینے والوں میں سے خوش نصیب کون ہے جن تک تحفہ پہنچے گا. جی یوسف بھائی. جی پچھلے پروگرام میں جو سوال ہوا تھا وہ تھا ذات النطاقین کس صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ جو جواب دیے ہیں ہم تک جو نام پہنچے ہیں: جنید ساہیوال سے، بنت روشن الدین منوڑا کراچی سے، عمر حیات اتاری بکھر، ام عبد الرحمن کوئٹہ، محمد طاہر حافظ آصف میمن گلشن معمار سے، بنت شاہد اتاری شیخو پورہ سے، بنت ممتاز اسلام آباد سے، بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہان، بنت غلام حسین گجر خان، ظہور الہی گجراوالا ہمشیرہ ثاقب ہری پور. اب ان کے درمیان قرآن اندازی کرتے ہیں اور قرآن اندازی ہم کرواتے ہیں عدنان بھائی سے. چلیں عدنان بھائی ایک پرچی نکالیں. جی جو قرآن نکلا ہے بنت محمد ارشد اتاریہ شاہجہانیہ. آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. چلیں جناب اب یہ تو کام ہو گیا. اب اس کے بعد اب ہم چلیں گے مقابلے کو آگے لے کر. آئیے آپ کو بتاتے ہیں مقابلہ 3 ٹیموں میں ہے، تو تینوں ٹیموں کے درمیان جو سیگمنٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے آئیے بتاتے ہیں. جناب 6 سیگمنٹس ہیں اور اب ان 6 سیگمنٹس میں ہم نے مقابلے کو لے کر آگے چلنا ہے. ایک سیگمنٹ کم ہے لیکن ٹیمیں 3 ہیں. پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. علم نور ہے، علم نور ہے. یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے آج علم نور ہے سیگمنٹ میں 3 سوال ہوں گے. تو ساری ٹیموں سے گزارش ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہے. سوالات کم ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ مسٹیک نہ ہو، نمبر پورے ملیں. شہداد پور والوں سے کریں گے پہلا سوال: کن 4 موقعوں پر شیطان دھاڑے مار مار کر رویا تھا؟ چلے جناب، شیطان کب رویا تھا اور کیوں رویا تھا آج سن لیجئے. جگا لے اس شعور کو جو حکمتوں کو ڈھونڈ لے، جگا لے اس شعور. جب اس پر بارگاہ الہی سے لعنت کی گئی، جب اسے زمین پر اتارا گیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. جب بارگاہ الہی سے اس پر لعنت کی گئی نمبر 1، جب اسے زمین پر اتارا گیا نمبر 3، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اور نمبر 4 جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. ان 4 موقعوں پر شیطان دھاڑے مار مار کر رویا. جواب درست دے دیا ہے جناب. اگر کسی کا کوئی بچہ مر جائے تو کیا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ لیا والوں سے سوال ہے.
جب بچہ پیدا ہو اور اس کے سانس جاری ہوں تو اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ زندہ ہو تو اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں, جو انتقال کر جائے اس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. جناب عقیقہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک سانس جاری ہو, یعنی زندہ کا عقیقہ ہو سکتا ہے, جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کا عقیقہ نہیں ہو سکتا. جواب درست دے دیا ہے جناب. سوال مظفر گڑھ والوں سے ہے, دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرنے پر آخرت میں اللہ پاک کیا انعام عطا فرمائے گا؟ علم نور ہے, علم نور ہے. جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر روز قیامت اس شخص کی پردہ پوشی فرمائے گا. کیا کمال کی حدیث ہے. جو بندہ دنیا میں دوسرے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اب ذرا ناظرین غور کیجئے, آج لوگ تلاش کرتے ہیں کسی کا عیب پتہ چل جائے, کسی کا پرابلم ملے, کسی کا اسکینڈل ملے, فوراً میسج چلانا ہے, فوراً دوسروں کو بتانا ہے. ایسا نہ کیجئے. جو دوسروں کے عیب اچھالتا ہے دنیا میں اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں. پتہ چل بھی جائے کسی کی کوئی برائی تو چھپا دیں, ڈھک دیں. کوئی بندوں کے عیب چھپائے گا, اللہ اس کے عیب چھپائے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کن خوبیوں سے متاثر ہوئیں؟ شداد پور والوں سے سوال ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش اخلاق سے آپ کے طرف متاثر ہوئی. دیکھیں سیرت تو کافی طویل ہوتی ہے, کچھ اسپیسیفک عادت تھی جو بیان کی گئیں, جو آپ کو سلیبس میں بھی دی گئی ہوں گی نا. جی وہ کیا ہیں؟ آپ کی امانت داری اور آپ کی سچائی سے. جی امانت داری, سچائی اور اچھے اخلاق سے متاثر ہوئیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. قیامت کے دن باب الریان سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ لیا والوں سے سوال ہے. باب ریان اس کا معنی ہے شرابی کا دروازہ, اس سے روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے. قیامت کے دن روزہ داروں کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. حدیث پاک میں جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کے متعلق کیا بیان کیا گیا؟ یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے, یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے, چراغ سے چراغ کو جلائیں گے. جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اللہ عز و جل کا اس سے ذمہ اٹھ جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر کے رجوع کرے. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ عز و جل اس کے عمل برباد کر دے گا اور اللہ عز و جل کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. جناب اب باری پھر شداد پور والوں کی ہے. آخری سوال ہے, علم نور ہے سیگمنٹ کا. عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خزانہ جو ہے کھو گیا وہ پائیں گے یہ عزم ہے, خزانہ جو ہے کھو گیا وہ پائیں گے. اگر کوئی نیک مخلص اور عاشق رسول بندے کی صحبت مل جائے تو یہ دونوں جہانوں کے لیے سعادت ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو ایسی کتابیں پڑھے جن سے عبادت کا شوق حاصل ہو, جیسے احیاء العلوم, منہاج العابدین, نیکی کی دعوت, فیضان سنت وغیرہ, تو ان سے عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا. انشاءاللہ اچھوں کی صحبت ملے گی, اچھی پیاری کتابیں پڑھیں گے, عبادت کا شوق بڑھتا جائے گا. جواب درست دے دیا جناب. کوئی ایسی 4 چیزیں بتائیں جو نبیوں کی سنت ہے. ناظرین غور سے سنیے گا. بچائیں گے یہ عزم ہے, گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ. حیا, مسواک, نکاح اور خوشبو لگانا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے. نکاح, مسواک, حیا اور خوشبو یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا
वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। जनाब मुजफ्फर घर वालों से सवाल है और ये इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है। अब तक किसी टीम ने कोई गलती नहीं की है। बताइए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु को जब इलाज के लिए नमाज छोड़ने का मशवरा दिया गया तो आपने क्या फरमाया? जब आप नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को के बेटे हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास को नमाज छोड़ने का कहा गया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बाबरकत निशान है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ेगा बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उसे इस हाल में मिलेगा कि उस पर गज़ब फरमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल से वो बंदा इस हाल में मिलेगा कि वो उस पर गज़ब फरमाएगा। जनाब आपने मना कर दिया कि नहीं, इलाज के लिए भी मैंने नमाज नहीं छोड़ना। तो आजकल छोटी छोटी बात पर लोग नमाज छोड़ने की बात करते हैं। नमाज किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। ठीक है, उसमें उलमा की इजाज़त से जो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता वो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, इशारे से पढ़े, मगर नमाज हर हाल में पढ़नी होगी। अल्लाह हमें नमाज की अहमियत समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, गलती कोई नहीं की, तीनों के नंबर बराबर हैं। अब इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट और आपकी कॉल्स की तरफ जाएं, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी कुछ सवाल करते हैं। यूसुफ भाई सवाल भी करें और कोई तोहफा भी दें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ भी सवाल करेंगे, मगर इससे पहले मैं अब्दुल हबीब आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। माशाल्लाह एक मरतबा फिर मदनी चैनल के नाजरीन को आपने सैराब किया है ज़हनी आजमाइश से। अल्लाह करीम कबूल भी फरमाए और आपको खूब बरकतें भी नसीब फरमाए। मुझे वो दिन याद है कि जब पहली बार मैं ज़हनी आजमाइश में आया था और आपने हौसला दिया था और पहला सवाल मैंने हाजरीन से किया था, कांपते हाथ थे, लरसती ज़बान थी, और आज अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने इतना मौका दिया कि खुद से प्रोग्राम करने का अल्लाह ने सआदत बख्शी है। यकीनन ये आपकी तरबियत और आपकी मेहनत का नतीजा है। हम ये समझ सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज़हनी आजमाइश सिलसिले की प्रोडक्ट जो है हमारे यूसुफ भाई भी हैं, और माशाल्लाह आज कितना प्यारा सिलसिला हाजिर जवाब और भी कई सिलसिले यूसुफ भाई माशाल्लाह करते हैं। तो मदनी चैनल अल्लाह की रहमत से टैलेंट को प्रमोट भी करता है और आगे भी बढ़ाता है। अल्लाह आपको भी और हमारे दीगर इस्लामी भाइयों को भी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलें जी, यहाँ पर हाजरीन से सवाल है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम बताएं। इमाम बुखारी नाम तो बड़ा सुना है, इनका नाम कुछ और है, बताएंगे आप? चले जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा एक मिनट आप रुक जाएंगे, आपसे कोई और जवाब ले लेंगे। एक नाबीना इस्लाम पे खड़े हुए थे आगे ना, ये जवाब देना चाह रहे हैं तो इनकी दिल जोई हो जाएगी इंशाल्लाह। आप माशाल्लाह देते भी रहते हैं और आपसे कोई और भी पूछ लेंगे इंशाल्लाह। आइए चले जी, माशाल्लाह चले। इनको माइक हाथ में दें। ये जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हबीब भाई, इमाम बुखारी का नाम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। पहले आप अपना नाम तो बताएं। हुजूर मेरा नाम बिलाल रज़ा है। बिलाल कहाँ होते हो आप? ये अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में तजवीद व किरात कोर्स हो रहा है। कारी जुनैद साहब माशाल्लाह आपके साथ रिकॉर्डिंग जो अच्छा वो करवा रहे हैं जी। तो आप तजवीद व किरात कैसे कोर्स सुन के कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, तो कहाँ से आए आप? आए कहाँ से? मैं मतलब गुलशन हदीद कराची का हूँ। अल्लाह अकबर। ये है माशाल्लाह आपका बयान भी होता है, मेरी ख्वाहिश है आप आया करें। अच्छा चले इंशाल्लाह। बहुत देखिए हम नाजरीन, ये है दावत इस्लामी के माशाल्लाह जो देख नहीं सकते, पहले तो इनका जज्बा देखें कि गुलशन हदीद कराची का एक कोना है, वहाँ से कोर्स भी करने आए हैं, ज़हनी आजमाइश में आए हैं, और शायद बहुत सौ को इमाम बुखारी का नाम नहीं पता होगा, इन्हें मालूम है। ये तोहफा इन्हें पेश करें, क्या बात है, बहुत मुबारक। अब्दुल हबीब भाई एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर कुछ इस्लामी भी अर्ज़ कर रहे थे कि आप 5 मिनट अगर हमें मुलाकात की सादत अता फरमाएं। इंशाल्लाह आपके साथ ही यूसुफ बापू खड़े हैं, इंशाल्लाह वो आपको ले आएंगे, मुलाकात कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं आपसे मिलूंगा, मेरे लिए सादत है। ये हमारे आज माशाल्लाह प्रोग्राम में 3 से 4 इस्लामी भाई ऐसे हैं जो बिनाई की महरूम हैं। हाँ। तो मुलाकात भी करेंगे इनसे अभी हाथों हाथ मिल लेते हैं, इनसे हाथों हाथ मिल लेते हैं। हाथों हाथ मुलाकात, क्या बात है जनाब। उठे खड़े हो जाए, जल्दी आ जाए जो मेरा आ जाए आगे चलो, ऊपर चल, आ जाओ ऊपर आ जाओ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। रोशनी बुलंदियों का चले आज सब मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। फिर एक इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, इधर 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 इधर, चले माशाल्लाह। और आपको लगता है बातें भी मुझसे करनी है, वो बातें हम इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद कर लेंगे, ठीक है? चले, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चलें, ये आपके लिए तोहफा, हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ले आएंगे, यूसुफ आपको ले आएंगे, चले बैठे, शाबाश, हाँ प्रोग्राम के बाद मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बहुत सारी बातें लेकर आए भाई ये तो, चले बैठ जाएं। चलें जी, एक और सवाल यहाँ पर कर लेते हैं। अब वो उनसे कर लें जो खड़े हो गए थे ना, उनका भी दिल ना टूटे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी किस धात की बनी हुई थी? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देंगे इसका भी जवाब। हाँ। अरे वाह माशाल्लाह। चलें चलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद शहजाद अत्तारी जी, चांदी की धात। अच्छा जनाब, बिल्कुल सही कहा, चांदी की, जवाब दुरुस्त दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, हमें अगर कॉल है तो कॉल दे दीजिए, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। मीठे मीठे रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई का सिलसिला ज़हनी आजमाइश माशाअल्लाह ज़वजल बहुत ज़बरदस्त और इल्मी फूलों से भरपूर सिलसिला है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी। मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम आज तीनों टीमों के साथ हैं। ज़हनी आजमाइश जिंदाबाद। तीनों टीमों के साथ, ये सही है, जेड़ा जीते ओदे नाल, कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा। चलो अगली कॉल दे दें। हाजी अब्दुल हबीब भाई त सिंधी बोंगे कडी गांगाइंदो? हाँ, सिंधी में भी ॻाल्हाईंदा साईं, तव्हां थोड़ो इंतज़ार करो, सिंध जी टीम अचण ॾियो, फिर इंशाल्लाह सिंध में भी ॻाल्हाईंदा। शहदादपुर तो आई है इंशाल्लाह, फिर आएगी सिंधी टीम, सारी ज़बानों में इंशाल्लाह। आज हर जुमेरात को हम इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को यूज़ किया करेंगे, तो आज इंशाल्लाह नेपाली ज़बान में मदनी फूल पेश किए जाएंगे थोड़ी देर के बाद। आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं अगला राउंड, जिसका नाम है इश्क के बोल। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब, तीनों टीमों से तीन तीन अशार सुनने हैं। पहली बारी है शहदादपुर वालों की। सर और वो संगे दर, आंख और वो बज़्म नूर। जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया? जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया। ये गालिबन मदीने शरीफ की याद में लिखा गया है कि ऐसी जगह थी जहाँ कैसे सजदे थे, कैसे नज़ारे थे। सर और वो संगे दर, आंख और वो बज़्म नूर। ऐसी मुबारक जगह से फिर वापस क्यों आए, उधर ही रह जाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सर और वो संगे दर, आंख और वो बज़्म नूर। सर और वो संगे दर, आंख और वो बज़्म नूर। जालिम को वतन का ध्यान, जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया। जनाब, लैया वालों की बारी है। कुछ नात के तबके का आलम ही निराला है। सकता में पड़ी है अकल चक्कर में गुमाया है। सकते में पड़ी है अकल चक्कर में गुमा आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजफ्फरगढ़ वालों से जवाब है, तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे। देखोगे चमन वालों जब अहद खिजा आया। देखोगे चमन वालों जब अहद खिजा आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
या रब एक साथ में धुल जाएं सियाहकारों के जुर्म। जोश पे आ जाए अब रहमत रसूलुल्लाह, जोश में आ जाए अब रहमत रसूलुल्लाह की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जलाएंगे ये अज़्म है, चराग से चराग को जलाएंगे ये अज़्म है। अबर आसा छा गई है बत रसूलुल्लाह की। नहीं जनाब, गलती हो गई है। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। गलती हो गई है। शिदातपुर वालों सवाल है, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की, हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है। हसरत मलाइका को जहां वज़अ सर की है। घड़ियां गिनी हैं बरसों की, ये शुभ घड़ी फिरी। मार मार के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है। नाज़रीन, ये शेर कमाल का है। कोई शख्स बहुत तमन्नाओं के बाद, बड़ी इल्तिजाओं के बाद मदीने पहुँचे और फिर ये शेर उसको वहाँ जाके पढ़े ना कि घड़ियाँ गिनी हैं बरसों की, बहुत अरसे से इंतज़ार था, वक्त ढूंढ रहा था, घड़ियाँ गिन रहा था। हैं घड़ियाँ गिनी हैं बरसों की, ये शुभ घड़ी फिरी, ये मुबारक घड़ी आ गई है। और कोई सिल होती है ना, किसी जगह को बंद कर दिया जाए, एक बड़ी सी सिल यूँ समझे ब्लॉक रख दिया जाए, तो वो थोड़ा सा जब सिरकता है तो रास्ता बनता है, हवा आती है। आला हज़रत कहते हैं कि मर मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है। ये सिल हटी है, शुभ घड़ी आई है और गुनाहगार मदीने पहुंच गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। घड़ियां गिनी है बरसों की, ये शुभ घड़ी फिरी। घड़ियां गिनी है बरसों की, ये शुभ घड़ी फिरी। मर मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है। मर मर के फिर ये सिल मेरे सीने से सर की है। चलें इसी कलाम के एक दो शेर सुन लेते हैं। आप मदीने पाक से आए हैं, कई सारे नाजरीन भी ये दुआ की तमन्ना रखते होंगे। आप हम सब के लिए भी दुआ कर दे, मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी दुआ कर दे कि अल्लाह फिर से मदीने की हाज़िरी आमीन आमीन। अल्लाह फिर से आसान भी कर दे, खैर से सबका पहुंचना भी आसान कर दे। इसी साल हम सबको मक्के मदीने की हज और उम्रे की सआदतें भी अता फरमाए। जुमेरात की रात है, न जाने किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। चले जनाब, इसी कलाम के एक दो अशार आपसे सुन लेते हैं, देखें कौन सुनाते हैं। उफ बेहयाइयाँ कि ये मुँह और तेरे हुजूर। इस कलाम, इस शेर को पूरा करें। तू करीम है, तेरी खुद दर गुजर की है। हाँ, तू करीम। अब ये शेर समझिएगा कि आला हज़रत ने मदीने के सफ़र पर ये कलाम लिखा है कि हुजूर मेरी इतनी बेहयाइयाँ हैं, मैं इतना गुनाहगार हूँ, ये मुंह लेके आपकी बारगाह में कैसे आऊँ? मगर हुजूर आप तो करीम है ना। खू कहते हैं आदत को, आपकी आदत तो दरगुजर की है, मुझ गुनाहगार को भी निभा लेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। बातें हो रही हैं, कालीने मस्जिद नबी का मुबारक हिस्सा। अच्छा, ये इंशाल्लाह इनको तोहफतन पेश किया जाता है और साथ ही साथ मुबारक पानियों का मजमूआ भी। सुभान अल्लाह। चलें जनाब। अच्छा, मुझे बताया गया कि एक शेर अभी बाकी है और हम आगे बढ़ गए। चले, मुजफ्फरगढ़ वालों से सवाल। महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बा में। क्या खूबसूरत शेर है। पहलू में जलवाकार,
पहलू में जलवागार अतीक उमर की है। जी, ये गुंबद खजरा का नक्शा आला हजरत ने देखो कैसा खींचा है, क्या बात है आला हजरत की। कहते हैं जो गुंबद खजरा नजर आ रहा है ना, इसके अंदर पता है कौन कौन है? फरमाते महबूब रब अर्श है। इस सब्ज कुब्बा में, इस गुंबद के अंदर अल्लाह के हबीब मौजूद हैं। और सुनो उनके पहलू में कौन है? पहलू में जलवा गाह अतीको उमर की है। हैं अतीक कौन है? सिद्दीक अकबर हैं, हजरत उमर भी मौजूद हैं। ये गुंबद खजरा के नीचे मकीन कैसे हैं? जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इस सब्ज कुब्बा में महबूब रब अर्श है। इस सब्ज कुब्बा में पहलों में जलवागाह है अतीको उमर की है। पहलों में जलवागाह कलाम का एक शेर है और चले पहले अब ये भी आला हजरत ने बहुत खूबसूरत एक मिसाल जो है ये यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के गिर्द कैसे तारे हैं मेरे आका, उसमें कैसे चमकते हुए चांद हैं, ये कैसा झुरमट है, इसी को आगे एक अगले शेर बयान किया जो अदनान भाई पढ़ना चाह रहे हैं। पढ़ दीजिए चलें। सादेन का किरान है पहलूए माँ में। सादेन का किरान है पहलूए माँ में। आहा झुरमुट झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। झुरमुट किए हैं तारे तजल्ली कमर की है। अच्छा, अब एक आखिरी शेर आप में से इस सेगमेंट का पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। और कमाल की उसमें भी तखय्युल है। भिखारी को कब मज़ा आता है भीख मांगने में, हैं? मगर आला हजरत ने एक शेर में भीख के भी मज़े का जिक्र किया है। कौन सुनाएगा? लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। सुभान अल्लाह, कौन सुनाएगा जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फरहान जी। लब वाएं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, इतने मज़े की भीख मेरे पाक दर। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अब जरा सोचे कि भिखारी को तो शर्म आती है ना, मगर आका के दर के भिखारी को भी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि आंखें बंद होती हैं, लब वाह हैं, पुकार रहा होता है, झोलियां फैली होती हैं। और आका देते कैसे हैं कि मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। अरे हाथ उठाना है और झोली का भरना है। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां। लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे सुभान अल्लाह। नाज़रीन आइए इससे पहले के स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। ज़हनी आजमाइश मैं भी माशाअल्लाह बड़े शौक़ से देखता हूँ। इसमें एक गुजारिश ये करनी थी कि इस बार के ज़हनी आजमाइश में कुरान शरीफ की तिलावत नहीं होती है, तो अगर कुरान शरीफ की तिलावत हो जाए तो और बाबरकत हो जाएगी। ज़हनी आजमाइश के सिलसिलों में कुरानी मसाइल, कुरानी अकायद अगला ही सेगमेंट है। अब ज़ाहिर है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है, लेकिन आपका मशवरा हमारी मजलिस ने नोट कर लिया होगा। जज़ाकल्लाह खैरा। एक और कॉल दीजिएगा।
सिलसिला ज़हनी आज़माइश माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। अब्दुल हबीब भाई आपसे पूछना ये था, जब टीमें बनाते हैं जिस दिन इनका प्रोग्राम होता है तो उनको सिलेबस दिया जाता है, तो ये कैसे सिलेबस इल्म नूर में कितना दिया जाता है, कितने सवाल दिए जाते हैं, इश्क के बोल में किस तरह इनको सिलेबस दिया जाता है? बराए करम आप इसके बारे में रहनुमाई फरमा दे तो हमारे लिए मदीना मदीना हो जाएगा, ताकि हम भी ज़हनी आज़माइश करने में कामयाब हो जाए। इल्म नूर है में इनको तकरीबन 600 सवालात दिए गए हैं, जिसमें से इनसे आज 3 पूछे गए हैं, ठीक है। और 25 के करीब आपको कलाम दिए गए हैं, 26 कलाम दिए गए हैं, जिसमें से इनसे सिर्फ 3 अशार पूछे गए हैं। तो ये हर प्रोग्राम के बाद बाज़ों का जब ये अगले राउंड में जाएंगे तो सिलेबस और हार्ड होता जाएगा और चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये आसान नहीं होता, माशाल्लाह इनको ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आइए चलते स्कोर बोर्ड की तरफ देखते हैं। हमारा स्कोर बोर्ड जनाब 12 नंबर हैं शहदादपुर के, 10 नंबर हैं मुजफ्फरगढ़ के, 12 ही नंबर हैं लैया वालों के। इससे पहले कि अगले सेगमेंट की तरफ चलें, हमारा खूबसूरत सेगमेंट जिसमें हम दुनिया भर के मुख्तलिफ आशिकान रसूल की ज़बान को अपने सिलसिले का हिस्सा बना रहे हैं, और आज उस सेगमेंट में हम नेपाली ज़बान में इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब आज थोड़ी मुश्किल ज़बान है और आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि उर्दू में मदनी चैनल की स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलता रहेगा, मगर नेपाल में रहने वाले मुसलमान जो हैं आशिकान रसूल हैं, उम्मीद है कि उनकी दिलजोई का सबब बनेगा। आज इंशाल्लाह वज़ू की सुन्नतें और आदाब हम नेपाली ज़बान में इंशाल्लाह सुनेंगे। वज़ू को सुन्नत तथा शिष्टाचार, उम्मत को रंगा जहनी आजमाइश संगा, प्यारा इस्लामी दाजो भाई हरो तथा मदनी चैनल का दर्शक ब्रिंद, अजमा सेगमेंट उम्मत को रंग जहनी आजमाइश संगा माँ, हमरा प्यारा अंतिम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ती उम्मती जो संसार का कुनई पनी भेग माँ तथा कुनई पनी देश माँ बसूबास गरी नेपाली भाषा बोलने व बूझने गर्दछन, उन्हीं हरोलाई प्रसन्ना पारने उदय सेले नेपाली भाषा माँ वज़ू को सुन्नत तथा शिष्टाचार वर्ण घरने प्रयास करने छो। इस वर्ण माँ कुनई पनी गलती भई दिए माँ छेमा गरी दिनों होला, के ही महान व्यक्ति तू हरो को भनाई छा, जो सधई बावजू अवस्था माँ रहने प्रयास गर्दा छा, अल्लाह पाक ले तेस व्यक्ति लाए सात कृपा हरो प्रदान गरनो हुंछा। पहलो नंबर फरिश्ता हरोले तेस व्यक्ति को साथ रोचाओ छन। दूसरो नंबर पोएतर कलम ले उसको लागी पुण्य लेखी रहनछा। तीसरो नंबर उसको अंगा अंगा ले तस्बीह गर्दछन। चौथो नंबर बा जमात नमाज माँ उसको तकबीर ऊला छूट दाइना। ओ सुद्दा अल्लाह पाक ले के ही फरिश्तहारो पठावना होंचा जासले जिन्नात तथा मनुष्या द्वारा होना सकने हानि बाटा, उस लाए सुरक्षा प्रधान गर्दा छन। उसको मुरीतियों सहजा पुरोक होंछा। जब सातों नंबर जबा सम्मा बावजू रहनछा अल्लाह पाक ले सुरक्षा प्रदान गरनो होंछा। वज़ू को सुन्नत हरो नियत गरनो बिस्मिल्लाह पढ़नो। यदि वज़ू गरनो बंदा पहला बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ियो भय बने, जबा सम्मा बावजू बहिंछा फरिश्ता हरो ले पुण्य लेखी रहन छन। खोटा अच्छा अल्लाह पाक ले हामी सबई लाए ई बदली फूल हरो लाए अपनावने तथा सेकीरा औ हरो लाए सेकावने अवसर प्रदान गरोन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमरो बदरी मकसद के हो मलाई आफ्नोरा सारा संसार का मानिस हरो को सुधार को प्रयास गरनो छा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सल्लु अलल हबीब। अब नेपाली ज़बान में नात, ये वाकई एक यूँ समझिए कि टास्क था, और हमने काफ़ी देर तक नेपाल के इस्लामी भाई से टेलीफोन लाइन पर आधा घंटा तकरीबन हमने उनको ऑनलाइन लिया हुआ था,
اور ان سے ہم نے سیکھا ہے ماشاءاللہ. ان اسلامی بھائیوں نے تو بہت اچھی تیاری کی ہے. تو آئیے نیپالی زبان میں انشاءاللہ. نبی پاک کی نعت کسی بھی زبان میں اچھی لگتی ہے انشاءاللہ. تو ہم مل کے انشاءاللہ قریب آ جائیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. نبی نبی میرو نبی 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 ہمرو نبی 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 میرو نبی 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 ہمرو نبی مت جان چھو ایک دن اوڑے را مدینہ مت خوشیلے رمونی چھو مکہ مدینہ مت جان چھو ایک دن اوڑے را مدینہ مت خوشیلے رمونی چھو مکہ مدینہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یومن تڑپے رہا تڑپائی کو یاد ماں یومن آؤن کو تڑپائی کو شہر ماں یومن تڑپے رہا تڑپائی کو یاد ماں یومن آؤن کو تڑپائی کو شہر ماں میں غریب ہوں میرے آقا میں لاچار ہوں میرے آقا چھائنا تیرے دل میں روما چھائنا تیرے دل چھائنا تیرے دل میں روما چھائنا تیرے دل میرا سپنا مدینہ میرا سپنا مکہ میرا سپنا مدینہ میرا سپنا مکہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ ملے بولو نو ہو سدور یسوالی مدینہ مدعونے چھوڑ لبیک بندے اوڑے را مدینہ ملے بولو ہو سدور یسوالی مدینہ مدعونے چھوڑ لبیک بندے اوڑے را مدینہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 مت جانے چھو ایک دن اوڑے را مدینہ مت خوشی لے رماؤنی چھو مکہ مدینہ مت جانے چھو ایک دن اوڑے را مدینہ مت خوشی لے رماؤنی چھو مکہ مدینہ میں تو جاؤں گا ایک دن اوڑے کر مدینہ ہاں میں تو جاؤں گا ایک دن اوڑے کر مدینہ میں تو خوشی سے جھوموں گا مکہ مدینہ میں لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا 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 صلو علی الحبیب. امید ہے کہ نیپال کے عاشقان رسول ویسے ماشاءاللہ نہیں بھی سمجھ آ رہا تھا آقا کا ذکر ہو کسی بھی زبان میں ہو اللہ کا ذکر ہو اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے. چلتے ہیں ایک بار پھر سکور بورڈ کی طرف اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جناب 3 ٹیموں کے سیگمنٹ چل رہے ہیں مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. اگلا سیگمنٹ قرآنی عقائد. علم نور ہے علم نور ہے
जनाब शहदादपुर वालों से करेंगे सवाल, अकीदाए खत्म नबूवत का क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। इस सेगमेंट में बड़े जबरदस्त कुरानी अकायद सीखने को मिल रहे हैं नाजरीन। अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के आखिर में मबऊस फरमाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलना मुहाल है। ये अकीदा ज़रूरियात दीन में से, और इसमें अदना सभी इनकार या शक व शुबा करने वाला काफिर और मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। अदना सा भी शक व शुबा करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। लैया वालों से सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान कलम कुदरत से क्या लिखा था? कितनी यूनिक मालूमात है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों शानों के दरमियान यानी दोनों कंधों के दरमियान क्या लिखा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में ये लिखा था कि आपके कबाइल दर कबाइल होंगे, आपकी औलाद में कबाइल दर कबाइल होंगे, और आखिर में नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। खत्मे नबूवत के मुनकिर का क्या हुक्म है? मुजफ्फरगढ़ वाले जवाब देंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना क़तइयत साबित है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो आखिरी नबी होना क़तइयत साबित है। कुरान पाक की अहादीस भी, कुरान पाक की आयत भी, सरी आयत भी मौजूद है और अहादीस तवातुर की हद तक पहुँची हुई हैं, और उम्मत का इजमाए कती भी है। तो इन सब से साबित होता है कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है, और जो इसमें शक करेगा या कोई ज़रा सा भी अदना सा शक शुबा करने वाला काफिर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज है। दायरा इस्लाम से खारिज है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। खत्मे नबूवत का सबूत हदीस से बयान करें शहदादपुर वाले। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और तमाम अंबिया की मिसाल उस शख्स की तरह है कि जिसने एक उम्दा और ख़ूबसूरत इमारत बनाई और लोग इसके आसपास चक्कर लगाकर कहने लगे हमने इससे बेहतरीन इमारत नहीं देखी, लेकिन वो जो एक ईंट की जगह है वो खटक रही है, तो मैं उस इमारत की वो आखिरी ईंट हूँ। वो आखिरी ईंट आका फरमाते मैं हूँ, गोया इमारत पूरी हो गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। खत्मे नबूवत का सबूत कुरान से बयान करें। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हैं, और अल्लाह ताला और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, और बेशक अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। जी, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। खत्मे नबूवत का जिक्र हो रहा है। बताइए खत्मे नबूवत के मुनकिर के मुतालिक आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? जल्दी कीजिएगा, 5 सेकंड रह गए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के बाद और आपके ज़माने में और क़यामत तक कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, और जो शख्स इसमें शक करेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में शक करेगा। और
जो शख्स ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी था, है या होगा, या ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी आने का इम्कान है, वो काफिर है। और यही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातम अंबिया होना ये ईमान के दुरुस्त होने की शर्त है। ये ईमान के दुरुस्त होने की शर्त है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अमीर अहले सुन्नत ने हमारे इसी अकीदे को बच्चे बच्चे के दिल में मजीद उतारने के लिए, मजबूत करने के लिए कितने आसान और कितने प्यारे नारे अता फरमाए हैं। आइए मिलकर कुछ नारे लगाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, है इमाम अंबिया सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, है हमारा भी ईमान सबसे आखिरी नबी। ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, ख़त्मे रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, है नूर मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं, है ख़त्मे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ज़हनी आजमाइश के सेगमेंट में अकायद भी मजबूत हो रहे हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल भी मिल रहे हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था इस सेगमेंट को खास नज़र में रखिएगा। इसके शॉर्ट क्लिप्स भी हम जारी करेंगे, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को दिखाएं, ताकि कुरान और हदीस के ज़रिए हमारे कुरानी अकायद मजबूत हों और बाद में अगर कहीं मौका पड़े तो हमारे पास दलील भी मौजूद हो। जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ, एक कॉल लेंगे और फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब, फर्स्ट टाइम ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम देख रहा हूँ। अल्लाह का करम है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मदनी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए, इंशाल्लाह मजीद भी सीखने को मिलता रहेगा। अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह, प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत ही प्यारा है। हमें इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा इल्म दीन हासिल होता है और इस प्रोग्राम को हम बहुत शौक़ से देखते हैं। इस प्रोग्राम की एक ख़ास बात यह है कि मैं जब शोबे हिफ्ज़ में था, दरस निज़ामी करने का जहन नहीं था मेरा। ज़हनी आजमाइश देखते देखते मेरे अंदर भी शौक़ पैदा हुआ, दिलचस्पी हुई कि मैं भी इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश में जाऊंगा और मुझे भी शौक़ हुआ। मैंने भी दरस निज़ामी में दाखिला लिया और आज मैं दर्जे ऊला में हूँ। हाजी साहब दुआ फरमा दें कि मैं बाअमल आलिम दीन बनूँ और ये मेरा कोर्स चलता रहे। अल्लाह करीम आपको आलिम बाअमल बनाए और खूब इसकी बरकतें अता फरमाए। चलते नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है, लेकिन पहले देख लेते स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। जी, शहदादपुर 16, मुजफ्फरगढ़ 14 और लैया 16। कुछ मुजफ्फरगढ़ वालों को जंप करना होगा अगर मुकाबले में वापस आना है। अगला सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े यूनिक क्वेश्चन है क्योंकि नाम ही इसका फ़िक़ही पहेलियां है। आइए शुरू करते हैं फ़िक़ही पहेलियां। इल्म नूर है, इल्म नूर है। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। वो कौन सा शख्स है जिससे सजदा सहव लाजिम होने वाला फ़ैल सहव हो गया, सहवन हो गया, यानी गलती से हो गया, लेकिन उस पर सजदा सहव ना करना बेहतर है। यानी गलती से ऐसा काम हो गया जिससे सजदा सहव होना चाहिए मगर सजदा सहव ना करना बेहतर है। इंटरेस्टिंग। इमाम को अगर जुमा और ईदैन में सहव वाक़ हो गया और जमात कसीर हो तो सजदा साहब ना करना बेहतर है। जी, बड़ी जमात है, हज़ारों सैकड़ों लोग हैं और इमाम साहब से ऐसा कोई अमल हो गया है तो अब बेहतर ये कि सजदा सहव ना करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। इस्लाम में कितनी आसानी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लैया वालों से सवाल है, वो कौन सा वुजू करने वाला है जो कोहनियों समेत हाथ और हथेली माँ 5 उंगलियां धो ले फिर भी उसका फर्ज पूरा नहीं होगा? अरे पूरा हाथ धो लिया, उंगलियां भी धो ली, हथेलियां भी धो ली, फिर फर्ज पूरा क्यों नहीं होगा?
जिसके 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगलियां हों। हाँ, उंगलियां ही 6 हैं तो फर्ज कैसे पूरा होगा भाई? 5 उंगलियां नहीं धोनी, फिर उसको 6 की 6 उंगलियां धोनी है। होते ना कुछ लोग, उनकी 6 उंगलियां होती हैं तो उनको फिर पूरी की पूरी 6 उंगलियां धोनी पड़ेंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा, वो कौन सी नमाज है कि इसे लोगों पर जाहिर करना गुनाह है? ओए होए होए, ये कौन सी नमाज है जिसको लोगों पर जाहिर करें तो गुनाह होगा? नमाज तो फर्ज है, लेकिन ये कोई नमाज है, लगता है कैटेगरी है। गौर से सुनिएगा इसका जवाब। ये कज़ा नमाज है, क्योंकि नमाज को तर्क करना ये गुनाह है और गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। नमाज कज़ा हो गई तो अब लोगों को बता के नहीं पढ़नी कि जनाब मैं कज़ा नमाज पढ़ रहा हूं, तो ये तो आपने एक गुनाह हो गया ना आपसे। अब गुनाह का जाहिर करना भी गुनाह है, तो कज़ा नमाज लोगों के सामने जाहिर करना गुनाह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अच्छा, अब शहदादपुर वालों से सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कौन सी नमाज है जिसका पढ़ना फर्ज ऐन है, लेकिन अगर वो छूट जाए तो इसकी कज़ा पढ़ना हराम है? अल्लाह, ये जरा गौर करें। नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है वो वाली, लेकिन छूट जाए तो अब कज़ा कब जो पढ़ेगा तो वो हराम है। जुमा, अगर जुमे की जमात तर्क हो जाए तो इसकी कज़ा करना हराम है, क्योंकि अब इसकी जगह ज़ोहर पढ़ना फर्ज है। ज़ोहर पढ़ना फर्ज है। वो नमाज जुमा जिसका पढ़ना फर्ज ऐन है, अगर वो छूट जाए तो उसकी कज़ा पढ़ना अब हराम है, क्योंकि अब ज़ोहर पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर जुमा नहीं पढ़ेंगे कि अकेले में जुमा पढ़ रहे हैं। तो जनाब ये भी जवाब दुरुस्त हो गया है। अब लैया वालों से सवाल है, वो कौन सा शख्स है जिसने आयत सजदा सुनी तो उस पर सजदा वाजिब हो गया, फिर बगैर सजदा किए वो सजदा उससे साकित भी हो गया? कमाल है भाई, अभी सजदा नहीं किया और वो साकित भी हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओए होए होए। वो शख्स जिसने जमात से बाहर यानी इमाम से जमात में शामिल नहीं हुआ था, इमाम से आयत सजदा सुनी और फिर उस पर सजदा, और जब जमात में शामिल हो गया, जब इमाम ने सजदा साहब कर लिया और जब अपनी रकात पूरी सजदा तिलावत कर लिया, और जब सजदा जब कर लिया उसके बाद शामिल हुआ, तो अब वो सजदा नहीं करेगा, उससे साकित हो जाएगा सजदा। क्या कमाल की सूरत है कि इमाम साहब सजदा तिलावत आयत सजदा पढ़ रहे हैं, ये बंदा भी जमात में शामिल नहीं हुआ है, इसने बाहर जमात के बाहर ये आयत सजदा सुन ली, ठीक है। अब इमाम साहब ने सजदा तिलावत कर लिया, ये बंदा उसके बाद जमात में शामिल हुआ, तो अब इस पर से सजदा तिलावत जो है वो साकित हो गया। अल्लाह अकबर। हमारे उलमा ने कितनी गहराई के साथ मसाइल लिखे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मुजफ्फरगढ़ वालों से सवाल है, वो कौन सा रोजेदार है जो रोजा तोड़ डाले तो ना उस पर कफ्फारा है ना कज़ा? वो शख्स जो रमज़ान करीम का रोज़ा रखे, रमज़ान शरीफ की कज़ा का रोज़ा रखे और बाद में उसे पता चले कि मुझ पर तो कज़ा थी ही नहीं, अब उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो इस सूरत के अंदर उस पर कज़ा नहीं, कज़ा और कफ़ारा दोनों चीज़ें नहीं जी। जो शख्स कज़ाए रमज़ान की नीयत से रोज़ा रखे फिर पता चले कि उस पर कोई कज़ा नहीं है, तो ऐसे शख्स पर रोज़ा तोड़ने पर कोई कफ़ारा और कज़ा नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ज़बरदस्त मुकाबला जा रहा है जनाब। आखिरी सेगमेंट ही लगता है फैसला करेगा, लेकिन आखिरी सेगमेंट पहुंचने से पहले हम थोड़ी सी नातख़्वानी भी कर लेते हैं। जुमेरात की रात है, आज तो ज़िक्र मदीना करेंगे मिलके इंशाल्लाह। आ जाए भाई, तीनों टीमें आ जाएं, पहले हम अपने नेक अमाल का जायज़ा ले लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ मौजूद हाज़रीन इज्तिमाई नेक आमाल का जायज़ा ले लेते हैं। नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, पाँचों नमाजें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क की तिलावत की या सुनी, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान शरीफ से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जमा व तफसीर पढ़ या सुन लिए, शजर शरीफ के औराद पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाने की कोशिश की, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें नीची रखी, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, रिसाला नेक आमाल के ज़रिए अपना जायज़ा लिया, अपने निगरानों की इताअत की, आप और जी से गुफ्तगू की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया,
عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسائل حل کیے، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہمیں بھی نیک اعمال پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آئیے ناظرین، اب انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لجپال نبی میرے
देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना जदो वक्त नज़ार आवे दामन दी हवा देना जदो वक्त नज़ार आवे दामन दी हवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना जदो वक्त नज़ार आवे जदो वक्त नज़ार आवे दामन दी हवा देना जदो वक्त नज़ार आवे दामन दी हवा देना गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ार दीदार अता करना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना जदो वक्त नज़ार आवे जदो वक्त नज़ार आवे दामन दी हवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दारी दवा देना सरसार दी महफिल बिच झोलियां बिछा बैठे सरकार दी महफिल बिच झोलियां बिछा बैठे मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हाँ दिन रात आका मदीने की दुआ मांग रहे हैं आका कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे मांग रहे हैं जैसा है बनी वैसी अता मांग रहे हैं सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका मोहताज बनी शाह गदा मांग रहे आका तेरी महफिल बिच झोलियां बिछा बैठे आका तेरी महफिल बिच झोलियां
नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे लज रख ले वे लज पाला लज रख ले वे लज पाला खाली ना उठा देना लज रख ले वे लज पाला खाली ना उठा देना लज रख ले वे लज पाला खाली ना उठा देना कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है कि सब तुम्हारा करम गया के बात अब तक बनी हुई है किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए तुम ही से मांगे कि तुम ही दोगे तुम्हारे दर से हिलो लगी है आका तेरी महफिल विच झोलियां बिछा बैठे लज रख ले फिर लज पाला लज रख ले फिर लज पाला खाली ना उठा देना आका आका लज रख ले फिर लज पाला खाली ना उठा देना जदों वक्त नज़र आवे नामर्दी हवा देना रात अदा करना सरकार दी मर्जी है खैरात अदा करना सरकार दी मर्जी है मेरा किसी कम तेरा झोली लो बिछा देना लजपा नबी मेरे दर्दां दी दवा देना साइम दी तमन्ना रवे आके मदीने विच साइम दी तमन्ना रवे आके मदीने विच तैबा दे सगाते पैराज बिठा देना तैबा दे सगाते पैराज बिठा देना लजपाल
دی دوا دینا جدو وقت رضا دل روندا ہے حق دل روندا ہے حق دل روندا ہے جانے جدو لوکی مدینے نو ہون سانو بھی آقا ہون سانو بھی آقا دربار وکھا دینا افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا اپنی باری کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ دل روندا ہے جانے جدو لوکی مدینے نو دل روندا ہے جانے جدو لوکی مدینے نو سانو ویا آقا ہون سانو ویا آقا دربار وکھا دینا ہون سانو ویا آقا دربار وکھا دینا مدینے کو جائیں کہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے کہ جی چاہتا ہے مدینے کے آقا تو عالم کے مولا تیرے پاس یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا دل روندا ہے جانے جدو لوکی مدینے نو ہون سانو ویا آقا ہون سانو ویا آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میں درداں دی دوا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہم بھی انشاءاللہ درود پڑھتے ہوئے آقا کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ.
माशाअल्लाह पूरी दावत इस्लामी मदनी चैनल वालों को, पूरा स्टाफ को, सबों को बहुत बहुत मुबारक इस ज़हनी आज़माइश का प्रोग्राम। हबीब भाई, मैं अब्दुल खालिक रहमान बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने बर्मिंघम से कॉल की और आपने हमें दुआओं से नवाजा। अल्लाह करीम हम सबको इस सिलसिले की बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह आँखें अब तक अश्कबार है और ये दावत इस्लामी है जिसने बच्चे बच्चे को गम मदीना अता किया है, मदीने की याद में रोने का एक शरफ़ दिया है। अल्लाह ये शौक़ बढ़ता रहे, ये आरज़ू बढ़ती रहे और इंशाअल्लाह यही वो शौक़ है जो मदीने पहुँचाएगा। इंशाअल्लाह सरकार करम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद रेहान अत्तारी है। माय नेम इज मोहम्मद रेयान अत्तारी। हम जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज गुजार है। माय डियर एंड स्वीट अब्दुल हबीब अंकल, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, टू दावत इस्लामी एंड द entire team of Madani channel for bringing such an amazing सिलसिला to us। हर साल ज़हनी आजमाइश बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। हर साल सेट ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, सिलसिले के सेगमेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और हर साल पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। डियर Abdul Habib uncle, please make dua that one day me and my brothers will come to Babul Madina Karachi and take part in this lovely silsila. Jazakallahu khaira. Mashallah, as you watching Zehni Azmaish very punctually, I hope so that inshallah when you become 15-14 years old, then inshallah you will come here and participate in Zehni Azmaish। ये बच्चे माशाल्लाह साउथ अफ्रीका से बड़ी पाबंदी से कॉल करते हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो ये भी इस सिलसिले में शामिल होंगे। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अपने प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जाने के लिए। तीनों टीमें अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें और एक बार फिर हम ज़रा अपना स्कोर बोर्ड देखते हैं। गुनाह से उम्मते नबी बचाएंगे ये अज़्म है, गुनाह से उम्मते जी। शहदादपुर के 20 नंबर हैं, मुजफ्फरगढ़ के 18 नंबर हैं, लिया वालों के 20 नंबर हैं। अब 2 सेगमेंट हैं जो हमें बताएंगे कि कौन सी टीम जो है वो मुकाबले में आगे जाती है, कौन सी 2 टीमें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। जी सैयद साहब, कुछ आप ऐलान करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैहि की तरफ से एक रिसाला पढ़ने की और सुनने की तरगीब दिलाई जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते जो रिसाला है उसका नाम बहुत ही प्यारा है। हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के बारे में दिलचस्प मालूमात। बहुत ही प्यारा रिसाला है, आप इस रिसाले में पढ़ सकेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ज़मीन में चश्मे कैसे जारी हुए, रूह निकलते वक्त तकलीफ़ क्यों होती है, क्या इंसान पहले बंदर था। ये तमाम मालूमात जो है इस रिसाले में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। एक ही रिसाले में दिया है, क्या बात है। और सिर्फ ये इतनी मालूमात के साथ साथ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने इसके पढ़ने सुनने वालों के लिए बहुत प्यारी दुआ भी अता फरमाई है। आइए सुनते हैं दुआ अत्तार। जी, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स किसी काम का इरादा करे और उसमें किसी मुसलमान शख्स से मशवरा करे, अल्लाह पाक उसे दुरुस्त काम की हिदायत दे देता है। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में दिलचस्प मालूमात पढ़ या सुन ले, उसे फैज़ान आदम अलैहिस्सलाम से माला माल फरमा और हमेशा हमेशा के लिए उससे राजी हो जा। अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा रिसाला और इसका हदिया एक बार फिर सुन लें, 18 रुपये इसका हदिया है। इंशाअल्लाह 18 रुपये के अंदर बहुत सी मालूमात के साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुआए अमीर अहले सुन्नत भी हासिल होगी इंशाअल्लाह। ये रिसाला आप टेलीफोन करके अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे होंगे, और भी किताबें मंगवाते रहिए मकतबतुल मदीना से। नाजरीन, अब वक्त हुआ है बहुत प्यारी ज़ियारतें करने का, क्योंकि ये जो सेगमेंट है इसका नाम है ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब, इसमें तीनों टीमों को एक ही बारी में कुछ ज़ियारतें दिखाई जाएंगी और तीनों से एक एक ज़ियारत पूछी जाएगी, एक एक पूछी जाएगी। तो आपने बड़े गौर से देखना है, फिर देखना है कि आप कितने नंबर हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ मुकामात मुक़द्दसा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह,
मज़ार मुबारक हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कराची, हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुल्तान, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की विलादत गाह मक्का मुकर्रमा, मज़ार मुबारक हज़रत लैस बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत मूसा काजिम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ, हज़रत सैयदा आयशा बिनते इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार शरीफ, जबल अहद मदीनाए मुनव्वरा, दरियाए नील मिस्र, जनाब बहुत सारी ज़ियारतें, दाता गंज अली हजवेरी का मज़ार शरीफ लाहौर, सुभान अल्लाह, मस्जिद आयशा काहिरा मिस्र। जनाब आज वाकई कुछ ज़्यादा मुश्किल किया है, काफ़ी सारी ज़ियारतें हैं। अब देखना है कि तीनों टीमों में से किसको कौन सी ज़ियारत कितनी याद है। शहदादपुर वालों की बारी है, बताइए ये ज़ियारत कौन सी है। सही जवाब बगैर इशारे के लेंगे तो 5 नंबर दिला देगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आसमान दिखाया है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। चाहे तो नंबर खोल लें। नंबर 5। नंबर 5 बताइए। जी जनाब कुछ नजर आ रहा है। जी मशवरा कर लीजिए मगर वक्त के दौरान कीजिए, चाहे तो एक और खिड़की खोल लीजिए, कंफर्म ना हो तो। नंबर 3। नंबर 3 एक और खिड़की खुलवा रहे जनाब, रिस्क नहीं ले रहे, इधर भी आसमान है उधर भी आसमान है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला। अगर ये सही जवाब देंगे तो इनको 3 नंबर मिलेंगे। बताइए क्या इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मज़ार शरीफ है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या जबरदस्त जियारत है ये मिस्र के अंदर, और जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। लैया वालों की तरफ चलेंगे, इन्हें बताइए कि ये जियारत कौन सी है। जी 5 नंबर। 5 नंबर 5 बताइए कौन सा है। चले जनाब 4 नंबर। जी 4 नंबर भी खोलिए जनाब, रिस्क नहीं लेना चाह रहे, समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत सारा मज़ार सामने आ गया है। अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह। क्या ये कराची शहर का अजीम मज़ार सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है? सही जवाब देने की सूरत में इन्हें भी 3 नंबर दिए जा रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब मुजफ्फरगढ़ वालों के पास मौका है, जो नंबर कम है वो सारे आज पूरे कर लें। चले जनाब। ओए होए ये तो कुछ दूर दूर से दिखा दिया है। नंबर 5। नंबर 5 इमाम मूसा काजिम अलैहिर्रहमा का मज़ार है। क्या ये इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है? सही जवाब पर इन्हें 4 नंबर मिल जाएंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जो 2 नंबर से ये पीछे थे, अब 1 नंबर का फर्क रह गया है, जो आखिरी राउंड में कवर भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। नाज़रीन मुकाबला ज़हनी आज़माइश सीजन 13 का ये मुकाबला अब हमें बताएगा कि कौन सी टीम आगे जाएगी, और ये राउंड होगा आखिरी जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। मगर पहले रुक जाइए, कॉल भी ले लेते हैं। जी मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और आपकी अप्रिसिएशंस का। एक और कॉल दे दें। चलें। मोहम्मद सैम रजा अत्तारी फ्राम मुबारकपुर। प्यारे अब्दुल हबीब भाई, प्यारा सा सिलसिला ज़हनी आज़माइश लाने के लिए शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारे मदनी चैनल को नजरे बद से महफूज रखे। आमीन।
बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। आखिरी राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। इल्म नूर है, इल्म नूर है। जनाब तीनों टीमों के एक एक इस्लामी भाई को हम डाइवर्ट करेंगे दूसरी टीम के दरमियान, क्योंकि सफर करना है अकेले। आप चले, आप यहाँ आ जाएं। बेटा आप जो है ना मदीना, आप उधर जाएंगे और आप, ठीक है। अच्छा, अब 5-5 सवाल हैं हर इस्लामी भाई से, रैपिड राउंड है। सिर्फ हम कहेंगे, सवाल करेंगे, इनका काम होगा कहेंगे सही है या गलत, सही या गलत का जवाब ये देंगे इंशाअल्लाह। और इसी राउंड में फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम आगे बढ़ती है। जियाउर रहमान, सबसे पहले आपकी बारी है, आप तैयार हैं? आपने सिर्फ सही कहना है या गलत कहना है। शहदादपुर के जियाउर रहमान से सवाल हो रहे हैं। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला-ए अव्वल है। सही। हसनैन करीमैन मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए। सही। मौजूदा माह जमादुल ऊला का है। सही। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। सिलसिला मदनी मुज़ाकरा बरोज हफ्ता बराए रास्त नशर किया जाता है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। शहदादपुर वालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब लैया के मोहम्मद अफजल अत्तारी की बारी है। जनाब तैयार हैं आप? या सही कहना है या गलत कहना है, ठीक है। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक सियालकोट में है। सही। ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हज़रत के खलीफा नहीं हैं। सही। सिरातुल जिनान हदीस के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। गलत। किताब हयात आला हजरत की तसनीफ है। गलत। दाता साहब का मज़ार पाक पतन में नहीं है। सही। जनाब गलतियां हुई हैं, कुछ कितनी हुई हैं? 2 गलतियां की हैं। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का मज़ार शरीफ सियालकोट में नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा में है। और ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हज़रत के खलीफा नहीं है। ये बात सही है और ये बात गलत है क्योंकि आप खलीफा हैं। यहाँ आपसे गलती हुई, 3 नंबर हासिल किए। अब बारी है फिर मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद अबू बकर की। तैयार है आप? अबू हनीफा इमाम शाफई की कुन्नियत नहीं है। सही। पहली वही गारे सौर में नाजिल नहीं हुई। सही। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी के जरिए भी मौजज़ात दिखाया करते थे। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुजफ्फरगढ़ वालों ने जंप लगाई है नाजरीन, मगर अभी मुकाबला बाकी है। अब शहदादपुर के शाहडूर मेमन साहब की बारी है। मेमन साहब आप तैयार हैं? जी। चलें, जवाब सवाल उर्दू में करेंगे, मेमनी में नहीं करेंगे, ठीक है। चलें। हज माहे जुल्हिज्जतुल हराम में अदा किया जाता है। सही। हजरत हलीमा सादिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजाई वालिदा हैं। सही। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुन्नियत उम्मे सलिमा है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पहली वही गारे सौर में नाजिल हुई। गलत। नमाज असर में कुल 12 रकतें हैं। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। शहदादपुर बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए जनाब अब बारी फिर लैया वालों की है। लैया वालों की नैया किनारे लगानी है तो मोहम्मद फैजान को सही जवाब देने होंगे। जनाब अब आपकी बारी है, तैयार हैं आप? सफा मरवा मदीने शरीफ में है। गलत। शबे महराज 27 रजबुल मुरज्जब को होती है। सही कहेंगे या गलत कहेंगे? मौलाना मुस्तफा रज़ा खान साहब आला हजरत के भाई थे। गलत। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार लाहौर में है। जल्दी करें। गलत। हुरूफे मुफरदात 26 नहीं हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जबरदस्त जनाब। अब बारी है मुजफ्फरगढ़ वालों की। अब मुजफ्फरगढ़ में हैं रोहेला वाली। कहां से आए? बड़ा मुश्किल नाम है। रोहेला वाली से आए हैं मोहम्मद मुईन अली। जनाब जमरात यानी शैतानों पर कंकरियां मारने को रमी कहते हैं। सही। कुरान पाक के 30 पारे हैं। सही। वुजू के 5 फराइज हैं। गलत। बच्चे की पैदाइश के बाद उसके सीधे कान में इकामत पड़ी जाती है। गलत। ग़ज़वा ओहद में 70 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश फरमाया था। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। ब्यूटीफुल जनाब। मुकाबला कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। अब शहदादपुर वालों के आखिरी इस्लामी भाई अगर सही जवाब दे देते हैं तो शायद मुझे लग रहा है कि शहदादपुर आगे निकल सकता है। किधर है शहदादपुर वाला? किधर पहुंचा हुआ भाई बगैर टिकट के? अच्छा लैया पहुंच गए। चले जनाब, नाम क्या आपका? नाम बताएंगे। मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इश्तियाक भाई शहदादपुर वाले, तैयार हैं आप?
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये चांद देखने वक्त की दुआ है। गलत। उस्मान गनी के निकाह में आका अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां आई थी। सही। काबे की छत पर जो पर्दाला है उसे मुल्तज़म कहते हैं। सही। इमाम बुखारी का मज़ार मुबारक मक्के में है। गलत। तयम्मुम के 4 फराइज नहीं हैं। सही। जनाब एक गलती कर ली है, मुल्तज़म नहीं कहते उस परनाले को जनाब, और ये एक गलती हुई, 4 नंबर मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी मुकाबला बाकी है। 37 नंबर हैं शहदादपुर के मुजफ्फरगढ़ वाले, अगर 5 के 5 सही जवाब दे दें तो ये भी बराबर हो सकते हैं। जनाब बारी है शहदादपुर के बाद लैया वालों की। लैया वाले किधर पहुंचे हैं भाई? इधर आए हुए हैं। चलें जनाब, आप तैयार हैं? आपका नाम बताइएगा, माइक पे बताएं, माइक पे। अताउल मुस्तफ़ा। लैया वालों से सवाल हैं। नमाज जुमा बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती। सही। आला हजरत का मजार बगदाद शरीफ में है। गलत। नूर वाला आया है कलाम मौलाना हसन रजा खान साहब का है। गलत। जन्नतुल बकी मक्के में है। गलत। आपस में मुलाकात के वक्त गले मिलने को मुआनका कहते हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ी देर की मेहरमा, आते आते क्या कमाल का मुकाबला किया है आज तीनों टीमों ने। नाजरीन अब सारी कहानी जो है वो मुजफ्फरगढ़ वालों के ऊपर है। अगर ये 5 के 5 सही जवाब देते हैं तो मुकाबला टाई हो जाएगा, नहीं देते तो शहदादपुर वाले जीत जाएंगे, और अगर जवाब दे देते हैं तो मजलिस तैयार रहे कि फिर करना क्या है। ठीक है जनाब? अच्छा, बाकी लोग सुकून से बैठ जाएं, जिनकी बारी आ चुकी है वो बैठ जाएं, ताकि काफी देर से खड़े होकर थक गए होंगे। ठीक है जनाब, आप तैयार हैं? जनाब क्या नाम है आपका? जमशेद इकबाल। जमशेद इकबाल साहब, और आपकी ताल्लुक है मुजफ्फरगढ़ से। ठीक है। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज फजर में 4 बार नहीं पढ़ा जाता। सही। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। गलत। सैयदुश शुहदा सैयदुना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। प्यारे आका ने हजरत हसन का नाम शब्बीर भी रखा था। जल्दी करें। सही। अल्लाह, ये आखिरी जवाब जो था ये गलत था, जिसको इन्होंने सही कह दिया। यानी आखिरी सवाल के आखिरी जवाब पर जाकर ये फैसला हुआ कि 4 नंबर मिले आपको। तशरीफ रखेंगे, अपनी अपनी जगह आ जाएं सारे इस्लाम, बल्कि खड़े हो जाएं, मेरे पास आ जाएं। और तय ये हुआ कि हमारी शहदादपुर की टीम 37 नंबर लेकर सिर्फ 1 नंबर के फर्क से मुकाबले में आगे बढ़ गई है। और 2 बड़ी कमाल की टीमें, लैया, मुजफ्फरगढ़, आप भी आएंगे, और ये बड़ा कमाल का मुकाबला हुआ। और समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी टीम आगे जाएगी। दिल छोटा मत कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह हम तहाइफ देकर भेजेंगे, और इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा तो आप आएंगे। बहरहाल एक शानदार मुकाबला हुआ, और हमने इस मुकाबले को देखा कि शहदादपुर की टीम जो है वो आगे बढ़ गई है। नाज़रीन आइए आपको दिखाते हैं कि हमारी जी स्कोर बोर्ड बताइए जी। शहदादपुर वाले कौन कौन है जी? आप तीनों हैं। आपका नाम क्या है बेटा? इश्तियाक भाई को हम इंशाल्लाह फैज़ान अबू हुरैरा दे रहे हैं माशाल्लाह। वैसे तो तीनों इस्लाम में सारे ही बड़े कमाल के थे, लेकिन एक को देना होता है। और अशरा मुबश्शर, आप सवाल है मदनी चैनल के नाजरीन से जो आपने कल SMS के जरिए जवाब देना है कि अशरा मुबश्शरा में कौन से सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफीजाद भाई थे? वो कौन से सहाबी थे जो नबी पाक के फूफीजाद भाई थे? सीरत मुस्तफ़ा किताब में ये आपको इंशाल्लाह इसका जवाब मिल जाएगा, तो आप इसका जवाब जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए। एप्लीकेशन में देखते हैं कि कौन सा सवाल पूछा गया था और उसका जवाब में किन किन के नाम निकले हैं जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। 5 आईडीज नोट कर लीजिए। ये 5 आईडीज में जिस जिसका नाम है वो अपने उन खुशनसीबों को इंशाल्लाह तहाइफ भेजे जाएंगे। सैयद साहब तोहफे लेकर आए हैं, और लैया वालों को और मुजफ्फरगढ़ वालों को हम तोहफा देंगे इंशाल्लाह। इसमें तबरुकात भी हैं और भी बड़े प्यारे प्यारे तोहफे हैं आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमारे सिलसिले की आप जीनत बने। अल्लाह आपको और तरक्कियाँ दे, आपको बरकतें दे माशाल्लाह। जनाब फाइनल स्कोर बोर्ड दिखाइएगा जनाब। ये मुकाबला चलते 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 देखें कहाँ पहुंचा।
کہ 37 نمبر شہداد پور کے دونوں ٹیموں کے 36 نمبر، 1 نمبر کے فرق سے جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ شہداد پور والے جیت گئے. یعنی اپنی دوسرے کی غلطی پر ان کو نمبر جو ملا اس سے وہ آگے نکلے. اب بہرحال اب آتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن اندازی کرتے ہیں. یہ بچوں کی ہے. ارے واہ اتنے بچے آئے ہیں. 520 520 موجود ہیں یا سو گئے؟ دیر بھی بہت ہو گئی ہے نا. 520 520 نہیں ہے. چلے دوسرا نکال لیتے ہیں. اچھا 492 آ جا بھائی آ جا ماشاءاللہ. چلیں اور آپ بڑوں کی قرآن اندازی بھی کر لیں بھائی. چلیں 613 613 موجود ہے ماشاءاللہ. 613 موجود ہے. آئیے اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سلسلہ جو اب پیر کو ہوگا اس میں کس کا مقابلہ کس سے ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین 3 جنوری 2022 بروز پیر رات 9 بجے پروگرام ذہنی آزمائش سیزن 13 میں براہ راست آمنے سامنے ہوں گی کراچی مدنی اور جہلم کی ٹیمیں. تو پھر دیکھتے رہیے ذہنی آزمائش سیزن 13. جناب کراچی کا مقابلہ ہے پیر والے دن رات 9 بجے براہ راست جہلم کے ساتھ. آپ نے شامل ہونا ہے. آئیے جہاں بھی دنیا بھر میں موجود ہیں ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. آئیے اجتماع کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے. مدنی چینل